Namaste bachcho, welcome back. I hope you are enjoying the subject. My name is Brijesh Mehta, I am your chemistry mentor, right? So in our previous video, we discussed about what is atomic number and what is atomic mass number. Let us recall, atomic number stands for number of protons inside nucleus of an atom, and atomic mass number gives us the sum total of protons and neutrons inside the nucleus. We also discussed few problems based on that, right? So let us discuss one more term that we frequently come across, and that is isobars, right? And then later on we are going to discuss, we are going to compare what are isotopes, isotones, isobars. There are so many similar terms, right? So that you don't have any confusion. So next term is isobars. Iso means same. Iso का मतलब है same. So isobars are atoms. Isobars are atoms. इसको न्यूक्लियाइड्स भी बोलते हैं, न्यूक्लाइड्स. ओके, सो isobars are atoms of different chemical elements. तो प्रीवियसली हमने आइसोटोप्स देखा था. आइसोटोप्स आर variety of atoms of a particular element. Isotopes have same atomic number, so they belong to same element. हमने कार्बन के 3 आइसोटोप्स देखे थे, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14. हमने हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप देखे थे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिशियम, right? So isobars are atoms of different chemical elements that have the same number of nucleons. न्यूक्लियंस यानी न्यूक्लियस में जो पार्टिकल्स है उसको न्यूक्लियंस बोलते हैं, यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स. ओके, तो बच्चों ये हो सकता है ना कि वी हैव 2 डिफरेंट क्लासरूम्स कि जिसमें नंबर ऑफ बॉयज डिफरेंट है, नंबर ऑफ गर्ल्स डिफरेंट है, लेकिन टोटल स्ट्रेंथ सेम है. जैसे एक क्लास की स्ट्रेंथ भी 40 है, अनदर क्लास की स्ट्रेंथ भी 40 है. इसमें 18 बॉयज एंड 22 गर्ल्स है, इसमें 20 बॉयज और 20 गर्ल्स है, तो दोनों का स्ट्रेंथ सेम हो गया, राइट? तो आइसोबार्स आर एटम्स ऑफ डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स that have the same number of nucleons in it, right? Sum total of protons and neutrons. Correspondingly, isobars differ in atomic number. In other words, we are saying the same thing because they belong to different chemical elements. We say they have different atomic number, that is the number of protons, but have the same mass number, right? So examples are written here. An example of series of isobars would be this. So सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, 16, राइट? और मास नंबर 40 है. क्लोरीन का एक आइसोटोप है, क्लोरीन यानी एटॉमिक नंबर 17, उसका भी मास नंबर 40 है. आर्गन 18, 40 और पोटेशियम 19, 40. अब मैं अगर आपको बोलूं कि एक पोटेशियम है जो 19 है और 39 है, तो ये दोनों क्या हो गए? ये दोनों आइसोटोप्स हो गए, राइट? सो आइसोटोप्स आर एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. तो ये दोनों आइसोटोप्स है, ओके? लेकिन अगर आप ये चारों को कंपेयर करो तो दीज आर एलिमेंट्स और एटम्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट एलिमेंट्स. ये सल्फर है, ये क्लोरीन है, ये आर्गन है, ओके, और ये पोटेशियम है. तो they are atoms belonging to different elements but they have same atomic mass number 40, 40, 40, 40, right? And even calcium is there, calcium with atomic number 20 and mass number 40. While the nuclei of these nucleides all contain 40 nucleons, they contain varying, V-A-R-Y, varying यानी अलग अलग, ओके, डिफरेंट नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जैसे मैंने अभी बताया था, राइट? सो ये टर्म है आइसोबार्स, राइट? सो नेवर गेट कंफ्यूज विथ द सिमिलर टर्म्स आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स, बिकॉज वन मोर इज गोइंग टू कम एंड दैट इज आइसोटोन्स, राइट? फिर हम तीनों को कंपेयर कर लेंगे कि कैसे याद रखते हैं. 2 न्यूक्लाइड्स यानी 2 एटम्स, ओके, उसको न्यूक्लाइड्स बोलते हैं. जिसका न्यूक्लियस अलग अलग है उसको न्यूक्लाइड्स बोलते हैं. सो 2 न्यूक्लाइड्स आर आइसोटोन्स. आइसोटोन्स किसको बोलते हैं? इफ दे हैव द सेम न्यूट्रॉन नंबर. So if 2 atoms have same neutron number,
then they are said to be isotones. But different proton number. So atoms with different proton number but same number of neutrons, right? दो क्लास है, उसमें नंबर ऑफ बॉयज अलग अलग है लेकिन नंबर ऑफ गर्ल्स सेम है. गर्ल्स सेम है लेकिन बॉयज अलग है तो टोटल स्ट्रेंथ भी अलग होगी. तो यानी बॉयज यानी प्रोटॉन्स को मैं बॉयज बोल रहा हूं, न्यूट्रॉन्स को मैं गर्ल्स बोल रहा हूं. सो two nuclides are isotones if they have different atomic number but they have same number of neutrons. For example, boron 12. जब ऐसे लिखते हैं बोरोन 12 तो उसका मतलब ये है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन. यानी अगर आपने बोरोन बोला तो एटॉमिक नंबर 5 फिक्स हो गया. सो 5 और बोरोन 12 यानी मास नंबर तो बोलना पड़ेगा बिकॉज वी मे हैव डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ बोरोन. ओके, सो बोरोन 11 भी होगा, बोरोन 12 भी होगा. तो ऐसे बोलना पड़ेगा कि कौन से बोरोन की आप बात कर रहे हो, बोरोन 12. सो बोरोन 12 एंड कार्बन 13. ओके, सो 12 माइनस 5 इज 7 और यहां मिस्टेक है, 12 नहीं 13 आएगा, राइट? सो ये बोरोन 5 एंड 12 एंड कार्बन 6, 12, 6, 13, 6, 14. तो ये तीनों आइसोटोप्स है जैसे हमने पहले पढ़ा था. कार्बन के 3 फॉर्म्स है, 3 टाइप के वैरायटी के कार्बन एटम्स है दुनिया में. तो एक है कार्बन 12, एक है कार्बन 13, एक है कार्बन 14. तो मेंटली आपको करना है 12 माइनस 6 is 6. तो इसमें 6 प्रोटॉन्स है, फिर इसमें एक ज्यादा है 7 प्रोटॉन्स है और इसमें 8 प्रोटॉन्स है, राइट? 6, 7 एंड 8. सो लेट मी जस्ट मेंशन. सो इसमें 6, इसमें 7 और इसमें 8. ये मैंने क्या लिखा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लिखा. कैसे मिलता है? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर. अब 12 माइनस 5 करो तो वो 7 हो गया. तो ये वाला और ये वाला, ओके, दोनों का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है तो वो आइसोटोन्स हो गए, राइट? सो बोथ कंटेन 7 न्यूट्रॉन्स एंड सो देयर आइसोटोन्स. सिमिलरली, ओके, सल्फर 36. ओके, जैसे सल्फर लिखते हैं तो एटॉमिक नंबर 16 हो गया. अब आप मेंटली सब्ट्रैक्शन कर लो, 36 माइनस 16 यानी 20 न्यूट्रॉन्स हो गए, राइट? तो डिफरेंट कलर से लिखते हैं, इसमें 20 न्यूट्रॉन्स हो गए, राइट? फिर हो गया क्लोरीन. 17, 37. तो 37 माइनस 17 भी 20 हो गए. आर्गन एटॉमिक नंबर 18 और ये 38 माइनस 18 भी 20 हो गया. फिर पोटेशियम, ये 19 है, ये 39 है तो 39 माइनस 19 भी 20 हो गया. और फिर कैल्शियम, ये 20 है, ये 40 है, 40 माइनस 20 भी 20 हो गया. तो ये सब आइसोटोन्स है. Isotones are atoms belonging to different elements as they have different atomic numbers 16, 17, 18, 19, 20. Sulfur, chlorine, argon, potassium, calcium, right? लेकिन सबके मास नंबर भी अलग है, 36, 37, 38, 39, 40. लेकिन अगर उसका डिफरेंस ले लो आप तो सब में सेम है तो इसको आइसोटोन्स बोलते हैं, राइट? सो अब हिंट दे दूं मैं याद रखने की, राइट? वी हैव 3 वर्ड्स: isotopes, isobars and isotones. ये 3 वर्ड है. अब तीनों में राइट हैंड साइड से थर्ड लेटर देख लो, P, A और N. पान हो गया, राइट? P, A और N. P का मतलब सेम प्रोटॉन नंबर. आइसोटोप्स हैव सेम प्रोटॉन नंबर but they have different neutrons and hence they have different atomic mass number. Isobars A यानी उसका एटॉमिक मास नंबर सेम है, राइट? एटॉमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन एटॉमिक मास नंबर सेम है. और आइसोटोन्स जो हमने अभी पढ़ा, एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है, एटॉमिक मास नंबर भी डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है, एटॉमिक मास नंबर भी डिफरेंट है, लेकिन उसका डिफरेंस सेम है जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देता है, राइट? सो सेम प्रोटॉन नंबर आइसोटोप, सेम न्यूट्रॉन नंबर आइसोटोन्स and same atomic mass number isobars, right? So
The last term that we are going to discuss today is isoelectronicity, या तो उसको बोलते हैं isoelectric species, isoelectric species. So अगर नाम पर से कुछ गैस कर सकते हो आप, तो आइसो यानी सेम, इलेक्ट्रॉन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उसको आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बोलते हैं. आइसोइलेक्ट्रोनिसिटी is an effect observed when distinct molecular entities यानी species, entities का मतलब है species. It can be neutral atoms, it can be positive ions, it can be negative ions, तो उसको species बोलते हैं एक साथ, right? Boys और girls को साथ में बोलना है तो students बोल सकते हो या human beings बोल सकते हो, right? So isoelectronicity is an effect observed when distinct यानी अलग-अलग different molecular entities have identical number of electrons, same number of electrons है यानी same arrangement of electrons, जिसको हम electronic configuration बोलते हैं, तो उसको isoelectronic species बोलते हैं. Two or more molecular entities are described as isoelectronic if they have the same number of valence electron. Valence यानी outer shell. आगे जाके पढ़ेंगे कि जैसे सन के आजू बाजू सराउंडिंग में प्लैनेट्स घूम रहे हैं, ऐसे till 10th standard you will be taught that electrons move in circular paths or elliptical paths. Then later on in 11th standard there is one chapter, structure of atom, where this concept will be taught in detail. So actually the planetary model of an atom is not fully correct, right? So electrons never move in fixed circular orbit, but till 10th standard you have to accept that thing, okay? So valence यानी outer shell, okay? The outermost electron is called valence, last shell. Shell यानी orbit. So number and connectivity of atoms but different in number and connectivity of atoms but differ in some of the elements involved. I'll give you one example what is written here. Suppose we take sulfate SO4 2-, इसको radical बोलते हैं. Group of atoms is called radical. Radicals never exist independently, they are part of some compound, जैसे हमने previous एक वीडियो में देखा था, right? जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, तो उसमें सल्फेट आयन है. तो सिर्फ नेगेटिव आयन नहीं होता है. आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरे पास ये बॉटल है, इसमें सिर्फ क्लोराइड आयन्स है, तो या तो हाइड्रोजन क्लोराइड होगा, या तो सोडियम क्लोराइड होगा, या तो कैल्शियम क्लोराइड, या तो मैग्नीशियम क्लोराइड. कुछ तो पॉजिटिव साथ में होगा नेगेटिव के साथ, राइट? सिमिलरली सल्फेट आयन है तो साथ में कोई पॉजिटिव आयन भी होगा. सो दीज आर कॉल्ड रेडिकल्स. सल्फेट सिमिलरली इसको बोलते हैं फॉस्फेट PO4 3-. Okay, now let us count number of electrons, total number of electrons. सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, राइट? तो सल्फर में 16 इलेक्ट्रॉन्स है. 4 ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन. एटॉमिक नंबर इज 8. सो 4 ऑक्सीजन है, सो 8 4 32. और ये 2 नेगेटिव यानी इन्होंने एक्सेप्ट किया. when an atom accepts electron it gains overall negative charge. तो ये 2 नेगेटिव चार्ज यानी 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसके पास, सल्फेट के पास, तो +2. फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर मैंने दिया था प्रीवियसली. फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15. इसमें भी 4 ऑक्सीजन है यानी 32, लेकिन इसके पास 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है 3. तो आप ये टोटल देखो, 32 तो कॉमन है, 16 + 2 18, 15 + 3 18, राइट? एंड 18 and 32 is 50. दोनों के पास 50 इलेक्ट्रॉन्स है. तो नंबर एंड कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स और डिफर इन सम ऑफ द एलिमेंट्स इनवर्ड. से इसमें सल्फर के सराउंडिंग में 4 ऑक्सीजन है, फॉस्फोरस के सराउंडिंग में भी 4 ऑक्सीजन है, ओके? और दोनों टेट्राहेड्रली है. टेट्राहेड्रली का मतलब क्या है कि एक सल्फर है, इसके 1 2 3 और 4, we have 4 oxygen atoms surrounding 1 sulfur atom, right? जो डायमंड में होता है. अगर आपने डायमंड का शेप देखा है, कहीं स्ट्रक्चर देखा है, जो लेटर में अपने नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि हाउ कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड इन डायमंड्स,
they are bonded tetrahedrally. So that is one arrangement. जैसे linear arrangement होता है, जैसे triangular arrangement होता है, जैसे spherical arrangement होता है या तो circular arrangement होता है, वैसे ही एक arrangement है जिसको tetrahedral बोलते हैं, right? Fine. So इसका और इसका शेप सेम है, ओके? सल्फर के सराउंडिंग में 4 ऑक्सीजन है, फास्फोरस के सराउंडिंग में भी 4 ऑक्सीजन है, तो इसका शेप्स सिमिलर है बिकॉज दे हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स. एज यू कैन सी दे हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स. टोटल 5 एटम है, इसमें भी टोटल 5 एटम है, एंड सेम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो इसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बोलते हैं. ओके, नाइट्रोजन एटम एटॉमिक नंबर 7, यानी उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स है. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, लेकिन 8 में से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, प्लस चार्ज यानी एक निकाल दिया, तो उसमें भी 7 हो गया. तो ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक रेडिकल आयंस हो गए, स्पीशीज हो गए. ईच हैव 5 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है और इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट भी सेम है. वी आर गोइंग टू सी लेटर ऑन व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. तो अभी आप इतना समझो कि यू मस्ट नो हाउ टू काउंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सिमिलरली ये तीनों स्पीशीज देखो. पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19. सो पोटेशियम एटम के पास 19 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. अगर आप प्लस चार्ज यानी एक निकाल दिया इलेक्ट्रॉन, सो ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आया, तो 19 में से एक निकाल दो तो 18 हो गए. कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है. अगर 20 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो कैल्शियम 2 प्लस हो गया, तो उसके पास भी 18 इलेक्ट्रॉन्स है. और स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21 इज स्कैंडियम. तो स्कैंडियम में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो भी 18 हो जाएगा, राइट? और अगर आपने आर्गन एटम ले लिया, आर्गन एटम, तो आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, तो इसके पास भी 18 इलेक्ट्रॉन्स है. तो ऑल दिस 3 स्पीशीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स विथ आर्गन. सिमिलरली क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स है, एज उसका एटॉमिक नंबर 17 है. माइनस चार्ज यानी एक एक्स्ट्रा हमने दिया इलेक्ट्रॉन उसको, तो उसके पास भी 18 हो गए. सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है. सल्फर एटम के पास 16 इलेक्ट्रॉन है, अगर हमने 2 ऐड कर दिए तो उसके पास भी 18 हो गए. फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है, हमने 3 दे दिए तो फॉस्फाइड आयन हो गया, तो उसके पास भी 18 इलेक्ट्रॉन्स है. तो ये 1 2 3 4 5 6, all these 6 species are isoelectronic with argon, means they all have same number of electrons, right? So finally in this lecture we studied, after revising isotopes and isobars, we did isotones and isoelectronic species, right? So go through these terms once or twice so that it will be easier. See, पहली बार कोई भी चीज पढ़ते हैं तो वो डिफिकल्ट होती है. अगर आप 2 साल पहले का सिलेबस ले लो तो उस समय में वो टफ लगता था, लेकिन आज आपको वो इजी लगेगा क्योंकि आपने बार बार उसको रिवाइज कर लिया, राइट? सो व्हेन यू लर्न समथिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, देन इट इज यूजुअली डिफिकल्ट, और ऐसा लगता है कि ये कैसे याद रहेगा. बट बिलीव मी, यू विल बी एबल टू रिमेंबर दिस वेरी नाइसली. दस यू नीड टू रिवाइज इट 2 or 3 times in different times, right? एक साथ 2-3 बार नहीं, आज एक बार लर्न किया, फिर दूसरे दिन एक बार रिकॉल कर लिया, तीसरे दिन एक बार पढ़ लिया, तो it will be very easier for you to remember this thing, right? Hope you are enjoying the subject. Chemistry is really very easy and interesting, but you must be familiar with this basic terminology. Then later on, you'll be able to understand everything very nicely, right? Thank you for watching this video.